Om Shanishcharaya Namaha. Om Shanishcharaya Namaha. Om Shanishcharaya Namaha. Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman. नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा. So this reading is going to reflect for the time period starting from 18th of March 2024. 9 number is of the March. If we calculate it like the 18 comes to 9, and also that it's in year 8. 8 is a year of Saturn. Saturn, abundance, infinity, Venkateshwara, Tirupati Balaji. So we're going to start with the blessings of Ganeshji, and my reading always starts with the messages that we get from Ganeshji. So today, for the time period reflecting from 18th of March, I take the messages from Lord Ganesha. With the help of my angels, my spirit guides, my ancestors, and my God, I ask them to help me with my reading today. This is our first message. So we're going to take 4 cards each. So what is Shani Dev bringing it for us from 18th of March? This reading applies to everybody who is gonna see. It's a timeless reading, and beautiful. See, beautiful. So I'm getting, okay, so I'll start with the first. We are getting the first one. It's wholesome. Wholesome is on the number 24, so number combines to 6. And since the card donates the heart space and Anahata chakra, so I think we're gonna get a lot of healing associated with the heart chakra. We're gonna have lots and lots of healing that is associated with heart chakra. We're gonna get healed from failed relationships, betrayal in relationships, abandonment. We're going to heal our heart. So Saturn, Shani Dev, is going to bring us a lot of healing in our heart. It's going to be a period of splendor. Splendor means a great period of receptivity, of fortune, of happiness, of joy in our lives. You see how Ganesha is enjoying a play with a butterfly, and butterfly usually represents transformation. So the healing of the heart will bring an amazing transformation in our lives, which will eventually enlighten us. It will enlighten us is a number 9 card. Okay, that is 2 plus 7 is 9, and 18 of March it combines to 9. So yes, healing is coming from the heart, which will enlighten us. And you see, this is another 9 number card, so there's a lot of healing coming. So 9 की synchronicity बहुत ज़्यादा है, so healing बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे heart chakra की तरफ. God is telling us to focus on healing our heart, because that is a door to our wisdom, to faith, to eternal. It's like a wheel of fortune. Like, heart is representing the wheel of fortune. You see how it will, it's like, if you just keep working on it, and it will move your life in a direction of eternal bliss, if we know how to heal our heart chakra. And of course, the bottom of the deck is the understanding. So we are learning to understand the patterns, the toxic patterns of our
रिलेशनशिप ऑफ आवर हेल्थ एंड हाउ वी टॉक टू आवर सेल्फ, जैसे हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, कैसे अपने थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारा इंटरनल डायलॉग क्या चलता है, वो सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा क्या बिहेवियर पैटर्न है, हम कहाँ आगे जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान गणेश जी ये कहते हैं कि तुम अपना इंटरनल पैटर्न, जैसे तुम अपने से बात करते हो, अपने टॉक्सिन पैटर्न्स तुम अब बहुत हद तक रियलाइज़ कर चुके हो। तुम्हें अब जब ज्ञात हो जाता है, जैसे तुम्हें, जो तुम कोई थॉट क्रिएट करते हो, तुम्हें इमिजिएटली ज्ञात हो जाता है कि ये थॉट मैंने क्यों क्रिएट कर रही हूँ, ये गलत थॉट है, मुझे नहीं क्रिएट करना चाहिए। एंड दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग। ठीक है, अब तुम्हें समझ आना शुरू हो गया है कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारा टॉक्सिक पैटर्न है, किसको कब रुकना है। यू हैव लर्न टू अंडरस्टैंड दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शनि भगवान हमें शिव जी के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। 4 मैंने यहाँ से निकाले हैं, 4 हम इस रीडिंग को फर्दर लेके जाते हैं। लाइक वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरनल मीनिंग्स ऑफ एवरीथिंग। होलसम का मीनिंग क्या है? सो ओके, oh beautiful. So such a beautiful energy. We've got the last, like the end of the deck card is heal through Shiva's energy. So of course there is a healing, as I said. हमारी हार्ट की हीलिंग हो रही है, हमें शिव जी की तरफ जाना है अपने आप को हील करने के लिए। हर कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये होलसम का कार्ड है उसके नीचे आया तांडव द डांस। सो वी शुड इन्जॉय द रिदम ऑफ लाइफ थ्रू डांस, थ्रू जॉय, थ्रू एक्सप्रेशन, थ्रू क्रिएटिविटी, जिससे हमारे हार्ट में हीलिंग आए। हम हर चीज़ को एज अ प्ले ऑफ लाइफ लें। हम जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण की माया है, कृष्ण का खेल है। लाइफ एक खेल है, हमें खेल की तरह लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हर गेम से हमें एक सीख मिलती है, एक लाइफ में लेसन मिलता है, हमें सीखना चाहिए और उसी से हमारी हार्ट की हीलिंग होती है। ऑल्सो स्प्लेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे आया कीप गोइंग डोंट गिव अप, कैलाश मानसरोवर। तो ये कहने के लिए आया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में चल रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें भगवान की तरफ लेके जा रहा है, कैलाश मानसरोवर की तरफ लेके जा रहा है, शिव की तरफ लेके जा रहा है। तो चलते रहो, छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी। थक जाओगे तो रोना मत, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, एनलाइटनमेंट के नीचे आया है राइज लाइक अ फीनिक्स। तो एक तरीके से आपका रीबर्थ हो रहा है, इट्स अ रीबर्थ एनर्जी। आप जो फील करेंगे वो ये फील करेंगे कि जो आज तक आपने जिया है उसके लेसन्स आप सीख चुके हैं और आपको समझ आ चुका है कि अपने रेपिटेटिव पैटर्न्स को कैसे हैंडल करना है। तो अब आप वो चीज़ें सीख चुके हैं, तो आप एक फीनिक्स की तरह राइज कर चुके हैं। आपको पता है कि अपनी लाइफ में रीस्टार्ट, रीवैम्प, रीबूट कैसे करना है। एंड दैट इज़ योर एनलाइटनमेंट, क्योंकि अब आपकी इंटरनल आइज, योर इंट्यूशन, योर सरेंडर, योर थर्ड आई हैज़ बिकम सो साइकिक दैट यू नो हाउ टू हील योर ओन प्रॉब्लम्स। तो एक हीलिंग का कार्ड के नीचे आया है द डिवाइन ऑर्डर, द इन्फिनिटी, द एट। तो ये जताता है कि ये सब डिवाइन ऑर्डर से ही हो रहा है, ये होना ही था, ये आपकी डेस्टिनी है, ये हीलिंग करने के लिए ही आप अर्थ पे आए हो, यही आपका पर्पस है। और ये भगवान के मतलब अनुसार हो रहा है, ये तुम्हारे डेस्टिनी के अनुसार हो रहा है, तो इस पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी एनर्जी, आपको हील करने की एनर्जी शिव से मिल रही है। ये शिव ही हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, शनिदेव हैं जो शिव और हनुमान के थ्रू आपको हील कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं थ्रू टैरट कि अब टैरट क्या कहना चाहता है, क्या एंजल्स हमें मैसेज देना चाहते हैं। हम 4 कार्ड ही निकालेंगे एंजल्स। यस एंजल्स, एस ऑफ कप्स।
सो होलसम से कहा जा रहा है कि होलसम मीन्स हार्ट हीलिंग। हार्ट हीलिंग में भी आपका एस ऑफ कप्स की हीलिंग आई है। एस ऑफ कप्स मीन्स दैट योर एबिलिटी टू कॉन्कर your creative side, your ability to handle your feminine energy has gone to its peak. You have become an ace at it. तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कॉन्कर कर लोगे, आप अपने हार्ट के डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर लोगे, आप अपनी रिलेशनशिप्स हील कर लोगे, आप अपने अंदर के सारे जो इमोशनल टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, अगर आप उनको हील कर लोगे। बट ये हीलिंग ना आसानी से नहीं आती। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह होती है। उसमें ये एक डेविल एनर्जी होती है। ये एक एनर्जी होती है जो तुम्हें बार बार टेस्ट करती है, तुम्हें बार बार मतलब ऐसा फील कराती है जैसे कि क्या सही है क्या गलत, उसको ही तुम बार बार क्वेश्चन करते हो कि क्या मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या ये रास्ता सही है, क्या ये मेरे लिए बना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आएंगी, एक क्वेश्चंस आएंगे, एक कन्फ्यूजन आएगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। शिव जी बार बार कह रहे हैं गिव अप नहीं करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ये डेस्टिन्ड है, ये डेस्टिन्ड है और ये आपके एनलाइटनमेंट के लिए हो रहा है, जिससे आप एक ऐसे इंसान बन सकें जो इन सब चीज़ों को, अपनी नेगेटिविटी वीकनेस को एक अपना स्ट्रेंथ बना सके। और जिस दिन आप इसे स्ट्रेंथ बना लोगे ना, उस दिन आप राइज ऑफ फिनिक्स, मतलब एक फिनिक्स की तरह आप ऊपर उठ जाओगे। आपको नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर कोई बर्डन है। लाइक इट इज़ अ सीड फॉर योर एम्पावरमेंट, कि अगर आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लेते हो तो हीलिंग तो आ ही रही है। देखिए इतना सुंदर कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपको, देखिए एक अर्दी एलिमेंट आ रहा है, एक वाटरी एलिमेंट आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही डिवाइन हैं। ओके, आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी आती हैं। आप एक कप से दूसरे कप में दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर एबिलिटी टू गिव टू दिस वर्ल्ड, है ना, इज़ वॉट इज़ योर डिवाइन पर्पस। आप इस दुनिया में जो देना चाहते हो वो आपके अंदर सब समाया हुआ है। आप पूरे केपेबल हो इस दुनिया को अपनी क्रिएटिव, अपनी पॉजिटिव और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने हार्ट की हीलिंग लानी पड़ेगी। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं है। सो मेन चीज़ ये कहा जा रहा है कि ये एक डेविल की तरह होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स ऑलवेज अ ट्रिकी सिचुएशन, बट आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह, क्वीन की तरह काम करना है। और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रही है कि आपको स्ट्रेंथ दिखानी है। सेकंड कार्ड इज़ ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपको स्ट्रेंथ दिखानी है और स्ट्रेंथ के ऊपर भी इन्फिनिटी 8 बना है। सो हमेशा शनिदेव एक ऐसे भगवान हैं जो हमें एक हमारे टीचर की तरह हैं, हमारे गुरु की तरह हैं, जो हमें सिखाते हैं कि अपने कर्मों से घबराना नहीं है। आप हर कर्म को एक सीड की तरह अपनी वीकनेस से स्ट्रेंथ बना सकते हो, और वही आपका एक टनल बन जाएगा, एक ज़रिया बन जाएगा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एंड फिनिक्स बनने के लिए। एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल नहीं रही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है जिससे हमें फ़ाइट करना होता है। और इस एनर्जी को फ़ाइट करने के बाद जो हमारी लाइफ में हीलिंग आती है, जो हीलिंग आती है, दैट इज़ द रियल थिंग। ओके, अब हम देखते हैं आगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, प्लैनेट्स जो हमें इस टाइम पे गाइड कर रहे हैं, हमारी हीलिंग में मदद कर रहे हैं और हमारी ये रीडिंग में भी हमें बता रहे हैं। सी, आई एम नॉट इवन किडिंग, सैटर्न केम इनटू आवर रीडिंग। आई वांट टू शो यू वेरी क्लियरली। देखिए सैटर्न आए हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो आई एम टेलिंग यू, जो आपकी लाइफ में आज तक हुआ है वो शनि की कृपा से हो रहा है। 18 मार्च से जो भी आपकी लाइफ में होएगा वो शनि की कृपा रहेगी। नेवर थिंक दैट शनि जी मुझे टेस्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट चलेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का आया है। सो यस, शनिदेव इस रीडिंग को में वो हमारे साथ हैं। वो हमें यही बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड सी द फुल मून हीलिंग। सो देयर इज़ अ डिवाइन वाटरी फेमिनाइन एनर्जी विच नीड्स टू बी हील्ड। और ये जो आने वाला फुल मून है ये आपकी हीलिंग में बहुत मदद करेगा।
और आपको फुल मून की जो मेडिटेशन होती है या फुल मून एनर्जी से कनेक्ट करना है और अपने आप को हीलिंग। मैं 4 कार्ड्स निकालती हूँ, तो मैं 4 ही निकालूंगी। इन जुपिटर इज़ हायर लर्निंग। देखिए 4 का कार्ड है, ठीक है, 4 पोर्टल आने वाला है। तो 4 इज़ अ जुपिटर का हायर लर्निंग, मीन्स कि सब आपकी हायर लर्निंग के लिए ही हो रहा है, ठीक है। एंड द 4th कार्ड इज़ ऑफ हिप्नोसिस। तो आपको ये 4 कार्ड्स आए हैं और आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, पहले में आपको आ रहा है जैसे कि अगर आपका हार्ट हीलिंग है, हार्ट हीलिंग से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो आपको शनिदेव बहुत चीज़ें प्रदान करेंगे अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स को हील करते हैं, ट्रॉमा अराउंड योर रिलेशनशिप्स। दूसरा कार्ड आया है इमोशनल हीलिंग का, कि डेफिनेटली जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हीलिंग की ज़रूरत होती है और वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो इसलिए अगर आप वो हीलिंग लेके आएंगे तो आप में एनलाइटनमेंट आएगी, आपके अंदर लेसन्स लर्न करने की क्षमता बढ़ेगी और आप अगली बार इम्प्रूव करेंगे अपने आप को और अपनी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे फिर से। एंड हिप्नोसिस का कार्ड हमें कह रहा है कि व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ ट्रांस, we are in the state of happiness and we are in the state of immense tranquility। तो मुझे वो ट्रैंक्वालिटी वाली फीलिंग आ रही है नेपच्यून से, दैट इट्स गोना बी व्हाट यू ऑलवेज वांटेड। अब हम देखते हैं थ्रू द स्पिरिचुअल डेक के कार्ड से कि ये रीडिंग आज हमें क्या एक्शन स्टेप्स लेने के लिए कहती है, प्लस हमें हर भगवान क्या सिखा सकता है। अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो हार्ट हीलिंग के लिए सबसे पहले मैसेज आया है कि आपको नॉन वायलेंट रहना है, आपको अपनी जो बातें हैं लड़ के झगड़ के काम नहीं चलेगा, आप आर्ग्यूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर इंटरनली जाइए, सोचिए, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो कुंडलिनी अवेकनिंग से आ रहा है, जो भी आपको महसूस हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी में। एनलाइटनमेंट के साथ सहस्रारा चक्र आया है, which is like an absolutely synchronized reading, I must say। and माता रानी का आता है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। So yes, divine feminine energy is there very strongly। tantra means यहाँ पे divine masculine and divine feminine का हमारे अंदर की यूनियन हो रहा है। ओके, सो देर इज़ अ ट्विन फ्लेम एनर्जी, लेकिन ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू फाइंड अनदर पार्टनर टू फुलफिल योर सेल्फ। यू हैव बोथ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इनसाइड ऑफ यू। तो आप उसको पहले अपने को बैलेंस करते हैं, हारमोनी में लेके आते हैं, दोनों एनर्जीज़ को इक्वल लेके आते हैं, उसके बाद ही आप आगे सीख करते हैं। अगर आपका डिवाइन पर्पस है या आपका कोई ट्विन फ्लेम है, तो फर्स्ट यू आर योर ओन ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप में हमारे अंदर एक यूनियन चल रहा है, क्योंकि हमारी अभी फीमेल एनर्जी हील हो रही है। ओके, हार्ट एनर्जी इज़ अ यूनियन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो वो एनर्जी की हीलिंग आ रही है, उसमें से हमारा मेन जो एरिया है वो है हमारा फेमिनाइन एनर्जी। इसलिए वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी, वी हैव गॉटन डिवाइन फेमिनिन गॉडेस, शी इज़ द मदर ऑफ द होल यूनिवर्स। ओके, शी इज़ द कॉस्मिक मदर। तो she is helping us heal our wounds, heal our sorrows, heal our ancestral wounds, heal our internal conflicts। Okay, so the only way to heal your heart is through अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि हम झगड़े ना करें रिलेशनशिप में, हम सोचें, कंटेम्पलेट करें, कुछ कहने से पहले ये सोचें कि वी कैन डू अ होनोपोपो प्रेयर विच इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। जिस भी इंसान को आपको फॉरगिव करने में दिक्कत होती है, आप उस इंसान का नाम लीजिए और आप ये प्रेयर करिए, एंड इट्स अ मिरेकुलस प्रेयर एंड इट विल हेल्प यू हील योर हार्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो इस वक्त हार्ट हीलिंग में चल रहे हैं, जिनकी हार्ट की अनाहता चक्रा की हीलिंग हो रही है, उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, सहस्रारा चक्रा की भी अवेकनिंग हो रही है। सो वी हैव बीन टोल्ड to look within। The answer is to look within and not fight with other people। So ये जो रीडिंग है ये हमारे लाइफ में जो वैसे तो हार्ट हीलिंग है, लव पे ही बेस्ड है। लव मैंने बोला एंड एक्चुअली लव केम आउट। यस,
तो हमारे अंदर बहुत वूंड्स हैं जो लव से एसोसिएटेड हैं, जो हमारी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यार नहीं मिला, हमें लोगों ने फेयर लव नहीं किया, हम लोगों के साथ सही नहीं किया, मतलब हमने उनको इतना दिया लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया आगे से, या हमारा मिसयूज़ किया। अबैंडनमेंट के इश्यूज़ हैं, एंसेस्ट्रल वूंड्स हैं, एक सारे वूंड हमारे अपने भी नहीं हैं, ये आधे वूंड्स तो हमारे एंसेस्टर्स के हैं जो उनके हमें हील करने हैं। वी आर द चोजन वंस एंड वी हैव टू हील देम. So yes, these are love comes is only heal, love can only heal the heart. So yes, हमारे को लव पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और कौन सा महीना इम्पॉर्टेंट है? वैसे तो ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के महीने की रीडिंग है, अप्रैल के महीने की रीडिंग है, मतलब 4 पोर्टल की तरफ। महीना तो मार्च चल रहा है, बट यस, ऑल दिस विल ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट इन जून फॉर यू. सो आपकी हार्ट हीलिंग फुली कंप्लीट हो जाएगी जून में. ये मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी हार्ट हीलिंग कम्प्लीटली, यू विल बी कम्प्लीटली हील्ड फ्रॉम हार्ट वुंड्स. अगर आप इस पे प्रोसेस पे काम करते रहते हैं तो आपकी हीलिंग पूरी तरीके से हो जाएगी. ठीक है, अब हम कुछ एक्शन स्टेप्स पूछते हैं कि हमें अगर ये हार्ट हीलिंग करनी है तो हमें क्या ध्यान रखना है. कोई ऐसे एक्शन स्टेप्स हैं? तो कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी हार्ट की हीलिंग करेंगे तो एक सिंसियर विश है जो आपके ज़रूर ग्रांट करेगा यूनिवर्स, जो आप वो चाहते हैं, है ना. एक तरीके से नीडल एंड थ्रेड एक तरीके से स्टिच, एक वूंड को स्टिच करता हुआ भी दिखा रहा है कि अगर आप अपने वूंड को स्टिच करोगे, है ना, एक तरीके से, तो एक विश आपकी ग्रांट ज़रूर की जाएगी. इट्स लाइक दैट, आई कैन सी इट. देखिए, इस टाइम पे कुछ मटेरियल वेल्थ का भी लॉस हो सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है. दिस कार्ड हैज़ कम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट शोज़ दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल. तो अपने हार्ट को हील करिए, कभी लैक वाली फीलिंग में मत रहिए, हमेशा अबंडेंट वाली फीलिंग में रहिए. सी बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर. सो अगर ये आता भी है तो ये मैं नीचे लगाती हूँ इसके, बिकॉज आई फील लाइक इट्स द एनर्जी फ्रॉम दैट वन. अब हम ये 2 डेक लेंगे जो हमें यहाँ पे दिखाएंगे कि अगर हमारे कोई और ऐसे एक्शन स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए. सो सर, हायर लर्निंग में गुड एडवाइस आ रहा है. तो कभी कभार हमारे को हमारी लाइफ में जैसे कोई भी रैंडम लोग मिल जाते हैं जो हमें एक अच्छी एडवाइस दे देते हैं, और वही हमारा मतलब सोल पर्पस होता है. ठीक है, वही हमारा सोल पर्पस होता है, और हम विश्वास नहीं कर पाते कि यही क्या हमारा सोल पर्पस है. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमेशा सीख लेनी है लोगों से, और हमें ये सोचना है कि कोई ना कोई ज़रूर हमारी लाइफ में आएगा जो हमें एक अच्छी एडवाइस देके जाएगा. कुछ भी हो सकता है, कोई एक वीडियो हो सकती है, कोई इंसान का यूट्यूब चैनल हो गया, आपने देखा, उससे आपको एक, यू वांटेड टू हियर दैट, यू नो, द यूनिवर्स वांटेड यू टू हियर दैट थ्रू समवन, तो उन्होंने किसी ना किसी के रूप में भेज दिया. तो हो सकता है ये मैसेज भी आपकी तरफ आया है कि भाई यू आर ऑल्सो लाइक दैट. एंड 4 कार्ड्स निकाले हैं मैंने. एक कार्ड मैं यहाँ के लिए भी निकालूंगी, बिकॉज वन इट विल बी कंबाइंड. सो डेफिनेटली देखो, ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही रहा है. एक तो ये आ रहा है कि देखिए, आपको अपने हार्ट को स्टिच करोगे, ठीक है, लॉसेस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देके ये सोचोगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो एक न्यू आपको एनर्जी मिलेगी, एक न्यू हैप्पीनेस मिलेगी, और ज़रूर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी. ठीक है. एट द सेम टाइम एक लोगों की एडवाइस हमेशा, अच्छे लोगों की एडवाइस हमेशा याद रखिएगा, वाइज पीपल. एंड हीलिंग से आपको डेफिनेटली आप कुछ अनाउंस करोगे, बिकॉज आई थिंक समथिंग बिग इज़ बर्थिंग इन योर लाइफ, समथिंग वेरी बिग इज़ बर्थिंग इन योर लाइफ, एंड यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. तो ये कार्ड आया है कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपको भगवान ने हर तरीके से एंजल्स भेज रखे हैं, हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया है भगवान ने, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. लाइफ इज़ ऑल ब्यूटिफुल. अब हम लास्ट रीडिंग, क्लोजिंग मैसेज लेते हैं. वी आर टेकिंग क्लोजिंग मैसेज फ्रॉम माता पार्वती.
right? Mata Parvati, Mata Kali se. And it's a very, very, very beautiful deck, and it gives the most beautiful messages. So 4 का message आया है. I mean, like, it's the most synchronized reading, I'm really telling you. Synchronized reading है तो 4 भवतारिणी. Okay, and this is also 14, that is Yuga Shakti. Yes, mama. So she's spoken. Yeah, the mother has spoken. So हम oracle की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि they have the most beautiful messages written, and a ritual is also written of how to understand the mom's message, Mata's message. Okay, so she's saying कि हमें क्या करना है. The tantric priestess karmic release manifest with the capacity to integrate higher divine energy into even the most stubborn patterning that has so far resisted healing. When momentum is building and you don't know how to stop fueling the fire or reverse the damage, she appears. Her presence indicates that this is a powerful time for spiritual work and healing practices. जो मैं कह रही हूँ. She will support the work and much growth can come from it, particularly at this time. No matter how wild they may seem, the storms of your life shall be gentled. You shall emerge unharmed. So the goddess Kali as Bhavatarini is the tantric priestess of karmic release and spiritual blessings.